we are live now. Okay. Yeah. So, sir, कैसे हो आप? बस ठीक है जी. Thanks for inviting. Nice meeting all of you. Taking your precious time and coming over here. हम लोग start करें? Start. Just a minute. Good evening, respected guests, dear attendees, on behalf of Social Tables family. Thank you so much for investing your time with us today evening. I'm Jennifer, the co-host for today's discussion panel. Kalpana Chaudhary, a social worker by profession, founder of Social Tables. She is the managing trustee chairperson of Jan Seva Foundation, Being the Change. Lagan.com, a matrimony portal for differently abled and acid attack survivors. Kalpana is the Global Goodwill Ambassador, a World Peace Ambassador for serving humanitarian, active member of FICCI Flow, CII-IW and Maharashtra. She has been a keynote speaker at different events, including TED Talks, also a recipient of numerous prestigious awards like the Karmavir Puraskar, Karmavir Maharatna Laureate, United Nations, Women Economic Forum, Iconic Women Creating a Better World for All, World CSR Congress Award, World Diversity and Global Achievement Award, and many more. Before diving into the panel introduction, today's webinar is in collaboration with the World Peacekeepers Movement, inspired and founded by Dr. Huzefa Karakiwala. The World Peacekeepers Movement signifies the world peace through the creation of the world's largest army, the World Peace Army. The movement is based on enlightening concept of the World Peace Triangle, representing the intellectual depth, its emotional appeal, and the practical realism. About Social Tables, the organization is the brainchild of Kalpana Chaudhary. We at Social Tables are committed towards the sustainable development, societal well-being, and environmental consciousness. We engage with global leadership, diplomacy, impactful leaders, talent developers, and engaging audience. Every week, we bring out some of the brightest minds from the diverse sectors to discuss over some significant ongoing issues. For today's panel, we have Mr. and Mrs. Lodha with us. Mrs. Lodha is an adherent philanthropist, poet, writer based in Mumbai, the chairperson of the NGO Lodha Foundation that aims to improve the lives of communities by making investment in initiatives in the fields of education, culture, literature, sports, and water resources. The Lodha Foundation also undertakes corporate social responsibility and activities in the Lodha group of companies. Lodha is a multi-talented personality and such an inspiration to many of us today. She is also the founder of Gyan Gangotri Kavya Manch, which is a women's literary organization for the development of the literary skills in housewives. Trustee of the Shri Hari Satsang Samiti, Vice President of the Rajasthani Mahila Mandal, member of the Friends and Tribal Society, Oswal Mitra Mandal, ex-member of the Maharashtra State Animal Welfare Board, ex-president of Jinsukla Mahila Mandal, and the first female president of the Lions Club of Walkeshwar. She has authored in total 11 books, out of which Parmavir is written in Hindi and English. Parmavir is launched by the Honorable Defence Minister Shri Manmohar Parrikar and also in London by the hands of Navteet Sarnam, High Commissioner of UK in Indian High Commissioner of UK in 2016. Parmavir was launched by the Governor of Maharashtra, Shri Chandra Vidyasagar Rao in 2015. On the other hand, other books are Bharat Bhagya Nirmata, Babul, Pati, Rishto Ka Recharge, Man Ki Lehre, Prerna, and so on. Another books are like Babul was launched by the Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji. Her coffee table book I Am All I Am was published by the Times of India biography about the complete journey of Mrs. Manju Lodha, and it was launched by the Honorable Governor of Maharashtra on the 30th January 2020. A part of this, she was also running 3 mobile libraries. She has made 1 library set in Lodha Dham, India's largest library set, which will have about 10 lakh books in all different languages. She has been awarded for the excellence in many spheres of her life, such as the award Maheshwari Pragati, Vishwa Mahila Divas Award, the Mayor of Mumbai, Jain Seva Ratna Award, Ghana Consulate Empowerment Award, Bharat Icon Award, Iconic Women of the Year Award, and many others. She is originally from Rajasthan.
and is married to Mr. Mangal Prabhat Lodha, who is the Indian politician, Vice President of BJP Maharashtra, and the founder of Lodha Group. He is also the member of the Legislative Assembly representing the Malabar Hill constituency of South Mumbai. Over to you, Kalpana. The president of BJP Mumbai. BJP. Sorry for, yeah, Sorry. all right. Sorry for the mistakes. Yeah, no problem. Hello, Mr. and Mrs. Lodha. A very warm welcome to you on our today's speaker series. It's an utmost pleasure to have you with us today on discussion the central role of women philanthropists. Over this COVID crisis, we have seen the impact of it on our daily lives, and millions of us in the crisis has affected 2 million of us globally. Let's begin the session. We understand Mr. Lodha has a number of responsibilities due to which he will be leaving us soon. On a quick note, we would like to know from Mr. Lodha about your journey from real estate to politics. What is that one message you would give to the young generation who are yet finding their way and paving their path? कल्पना जी धन्यवाद. आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और आपका जो सोशल बैकग्राउंड है उस समय इस कोविड के डिफिकल्ट टाइम में आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने एडमायरर्स के साथ आज सबको बात करने का मौका दे रहे हैं. आपने जो सवाल किया, मेरी फैमिली वैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी. मैं बचपन से आरएसएस से जुड़ा हुआ था. मेरे पिताजी 3 बार पार्लियामेंट के मेंबर थे, इसलिए पॉलिटिक्स में था. पर मुंबई में मंजू से शादी के बाद जब मुंबई में आया तो बहुत साधारण सी जिंदगी शुरू की थी. नौकरी करता था, उसके बाद छोटा सा अपना बिजनेस शुरू किया. और चूंकि आरएसएस से जुड़ा हुआ था, इसके लिए थोड़ा सोशल एक्टिविटी में था. वो सोशल एक्टिविटी कब पॉलिटिक्स में बदल गई मुझे भी पता नहीं. पर मैं 2 बातें जो आपने कहा कि यंग जनरेशन के लिए क्या मैसेज है, तो मैं 2 बातें बताना चाहता हूँ. एक, सबकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं. 95% लोगों को पता नहीं पड़ता जब अपॉर्चुनिटी आती है, बाद में रियलाइज करते हैं अरे उस समय वो कर लिया होता तो अच्छा रहता. तो जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जब आपका मन बोलता है, दिमाग को कम सुनो, मन को ज्यादा सुनो. मन जब बोलता है करो तो कर गुजरो. दिमाग का ज्यादा ध्यान देने को जाओगे तो इस देश में इतने कानून है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. दूसरा, हार्ड वर्क से कम कोई नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है. और हार्ड वर्क का कभी ये समझने का भी ये शॉर्ट करके वो आगे चला गया, वो आगे चला जाता है और उसका फिर नीरव मोदी भी बनता है और मल्लैया भी बनता है. इसकी बजाय हम अपने हार्ड वर्क से जो कुछ हमारे सामने कानूनों का दायरा है उनको न तोड़ते हुए जितनी मेहनत करेंगे. स्मार्टनेस और चालाकी इसके बीच में फर्क है. स्मार्टनेस जरूर करिए, चालाकी मत करिए. मुंबई लोगों को बहुत देता है. यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि भारत दुनिया के नक्शे के ऊपर उभर रहा है और इस समय हर डिजास्टर के बाद में नया निर्माण होता है. कोविड एक डिजास्टर लेके आया है, वापस नया निर्माण होगा. हार्ड वर्किंग और जो मन की बात से निर्णय होता है वही डिसीजन करिए. लास्ट में जाके सक्सेस आपको मिलेगी. 5-10 साल के बाद में कल्पना जी जब वापस आपको बुलाएंगे तो आप में से कोई लोग कहेगा कि कल्पना जी की उस मीटिंग में जाके हमको ये सुनने को समझने को मिला कि हार्ड वर्किंग और दिल की बात सुनकर काम करने से पक्की सफलता मिलती है. धन्यवाद. Thank you so much, sir. That was so insightful. आपने एकदम सही कहा. Without hard work, there is no easy way and shortcut as well. Thank you so much, sir, for your wonderful message. It has been a great to have you on our show. We wish you all the best and loads of success for your future endeavors. Take care and stay safe, sir. Coming to you, Mrs. Lodha. Firstly, I would like to congratulate you, Mrs. Lodha, for your award. You are a great motivation and influencer for our young audience and me personally. Paramveer Award Diary, a book you published, was launched in 2016. The book chronicled the lives of 21 Paramveer Chakra awardee, the highest military honor bestowed by India to these serving in Indian Armed Forces. What inspired you to pen down this book? आपकी आवाज नहीं आ रही है. अनम्यूट करना है. You have to start recording. I'll record. Hello? Yeah. Now? Yeah. Sorry for disturbance. सबसे पहले
तो मैं सभी सुनने वाले दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और कल्पना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने आज इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया। कहते हैं कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। अभी हम लोग सभी, विश्व पूरा कोरोना के संकट दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि अपनी आंखों में रंगीन ख्वाब सजाए रखिए, अपने होठों पर मुस्कुराहट के 100 गुलाब खिलाए रखिए। वक्त अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को, खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, शहंशाह बनाए रखिए। तो आप सभी सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और जी भरकर जिएं। आते हैं हम परमवीर चक्र की तरफ। 2014 की बात है, जनवरी में, जब ए मेरे वतन के लोगों इस गाने को 50 वर्ष हो रहे थे, तब लोढ़ा फाउंडेशन ने अचानक एक दिन सोचा कि हम कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम करते हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को जोड़ते हैं। तब हमने लता जी से जाकर अनुरोध किया कि आप हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप आएंगी? फिर उन्होंने हाँ कहा। फिर नरेंद्र जी मोदी से हमने अनुरोध किया, वो आए, लता जी आई, और फिर जो प्रदीप, जिन्होंने कवि प्रदीप ने ये जो गाना लिखा था, उनकी बेटी को भी हमने निमंत्रण दिया। और इसके अलावा हमारे देश भर से हमारे वीर जवानों को और उनके परिवारों को हमने आमंत्रित किया। और रेसकोर्स की जो बड़ी जगह है उसको हमने हायर किया और सामने 1.5 लाख जनता, मतलब इज अ सुपर, मतलब ये आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। और स्टेज पर हमारे सारे वीर जवान थे, लता जी, नरेंद्र जी मोदी और हमारे प्रदीप जी की बेटी थी, और हमारे 2 हीरो उस समय आए हुए थे, सुनील शेट्टी और सनी देओल, वो मंच पे थे। और फुल भरा हुआ ऑडियंस, और एक साथ 1.5 लाख लोगों ने ये गाना गाया, ए मेरे वतन के लोगों। सोचिए कैसा माहौल रहा होगा। और फिर हमने सारे उन वीरों का सम्मान किया, उनके परिवार वालों का सम्मान किया। और जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब कई वीर जवान थे और उनके परिवार वालों ने मुझसे, मैं जब उनसे मिली तो एक तरह से आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमने ये बहुत अच्छा कार्य किया कि हमारा ऐसा सम्मान, मीन्स एक गैर सरकारी संस्था और इतने सामने इतने 1.5 लाख जनता, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। उनकी आंखों में एक नमी थी। कल्पना जी, उसके पहले तो मैं भी हमारे इन सैनिकों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। हम सब आम जनता यही कहती है कि हमारे सैनिक हैं, सरहद पर हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे मन में कोई एक जज्बा नहीं होता। लेकिन उस दिन मेरे अंदर एक बीज पड़ा कि नहीं, मुझे इन सैनिकों के बारे में कुछ लिखना है और आम जनता तक इसको पहुंचाना है कि किस तरह से ये मौसम के हर मिजाज का सामना करते हुए हमारी रक्षा करते हैं, 125 करोड़ जनता की रक्षा करते हैं। इसीलिए हम घरों में चैन की नींद सोते हैं। सही मायने में तो हमारे असली नायक तो यही हैं। हमें इनके बारे में जानना चाहिए। हमें 1-2 नाम भी किसी से पूछेंगे तो कोई नहीं जानता है। और फिर मैंने सोचा कि मुझे एक किताब लिखनी है। तब मैंने कहा कि परमवीर चक्र, ये जो कि सबसे सर्वोत्तम सम्मान हमारे सैनिकों को दिया जाता है, क्यों ना इसके बारे में लिखा जाए। फिर उसके लिए मैंने सब ढूंढना शुरू किया कि किन किन को ये मिले। फिर 21 लोगों के बारे में जो भी मुझे जानकारी मिली वो उसे मैंने इसमें संकलित किया। इसके अलावा हमारे यहाँ अशोक चक्र भी मिलता है, वीर चक्र मिलता है, महावीर चक्र मिलता है, वो भी किन किन को मिले हैं ये सब मेरी इस पुस्तक में मैंने इसमें समाहित किया है इसके अंदर। और इसको फिर मैंने हिंदी में भी लिखा, और हिंदी में यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि राजभवन में इसका विमोचन हुआ। फिर मेरे दिल में आया कि क्यों ना इसे, हमारे देश के बाहर भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन रहते हैं, उनको भी तो जानना चाहिए। फिर मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया और फिर मैं लंदन में जाकर इसका विमोचन करवाया मैंने। तो एक तरह से मेरे जीवन का भी यहाँ से एक नया मोड़ शुरू हुआ। इस पुस्तक की वजह से मुझे कई लोग जानने लगे कि भाई परमवीर चक्र लिखा है, लोगों के दिल में हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान बढ़ गया। मैंने इसमें एक जगह लिखा है कि भाई हमारे देश, मतलब विश्व की सारी धन दौलत जितनी भी हो वो तराजू के एक पलड़े में रख दी जाए और एक पलड़े में एक सैनिक की बहादुरी रखी जाए, तो सैनिक की बहादुरी का पलड़ा भारी पड़ेगा। क्योंकि किसी भी देश का गर्व उसकी सेना होती है। सेना है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है। इसलिए जब भी किसी वर्दीधारी सैनिक को
और सैनिक ही क्यों, कोई पुलिस कर्मी को देखिए, कोई डॉक्टर को देखिए जो हमारे सेवा करते हैं, फायरमैन को देखिए, आप उनके लिए सम्मान में, उनके सम्मान में तालियां बजाइए, क्योंकि उनकी वो अपनी जान को जोखिम में डालकर हम लोगों को सेवा कर रही है। कोई उनकी नौकरी नहीं है कि मैं खाली नौकरी कर रहा हूं, उनके मन में देशभक्ति का जज्बा है। उस जज्बे की वजह से वो इस क्षेत्र में आते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, और उन्हीं की वजह से हम घरों में चैन की नींद सोते हैं, हम दिवाली मनाते हैं और वो खून की होली खेलते हैं। एक युद्ध हमारा सैनिक लड़ता है सरहद पर, और एक युद्ध उनका परिवार लड़ता है घर पर बैठकर, दिन रात उनके आने की प्रार्थना करता है ईश्वर से, उनके लंबी उम्र की, कि वो जल्दी घर आए। और पता नहीं होता है, जब विजय तिलक लगाकर वो भेजते हैं कि अगली मुलाकात उनसे होगी भी या नहीं होगी, कितनी अनिश्चितता होती है, फिर भी वो यही कहकर भेजते हैं कि सीने में गोली झेलना, पीठ पर गोली मत खाना, अपने तिरंगे को लहराए रखना। तो ऐसे वीर जवानों को ये मेरी पुस्तक समर्पित है, और मैं उनके रियल में, मेरे दिल से, हृदय से, मेरे मन में उनके लिए इतनी भावना है। आज भी मैं हर वर्ष 2-3 कार्यक्रम सैनिकों को लेकर करती ही रहती हूँ। उनके शहीद परिवार के लोगों को मैं बुलाती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ। सम्मान उनके लिए कोई, उनके सम्मान बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें एक मन में आता है कि नहीं, हमारे देश के लोग जो हैं वो हमें भूले नहीं है, हम उन्हें कुछ दे नहीं सकते, बस सिर्फ प्यार दे सकते हैं, एक सम्मान दे सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इस परमवीर चक्र की वजह से लंदन में मुझे खुद को, स्वयं को इतना मान सम्मान मिला। वहां पर हर टीवी चैनल में, हर रेडियो स्टेशन पर मेरे लाइव इंटरव्यू हुए, और जिंदगी में पहली बार मेरे लाइव इंटरव्यू हुए। मुझे पता ही नहीं था क्या बोलना है, क्या करना है, वो क्या पूछेंगे, लेकिन कहते हैं ना, जब मन अच्छा होता है तो भगवान भी उसकी सहायता करता है, और इसी तरह से ये मेरा सफर चल रहा है अभी तक। बिल्कुल सही। ऐसे वीर जवानों को मेरा प्रणाम, और आपको भी धन्यवाद। आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हो, मतलब एक नेशनल, जब आप बात कर रहे थे मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे, और नेशनलिज्म की जो वो भावना है वो भी जो हम सब में भी है, लेकिन आप में तो मतलब इनके लिए बहुत ही ज्यादा आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। दिस इज सच एन इंस्पिरेशन टू मी ऑल्सो। मैं हर साल इनको राखी बांधने भी जाती हूँ। पिछले 3, जब से ये लिखा है, सन 2014 के बाद से, जब से मैंने पुस्तक लिखी है, मैं सैनिकों को जाके राखी बांधती हूँ। मैं जैसलमेर बॉर्डर पे जाकर आई, और वहां जो दृश्य देखा, मीन्स मैं कल्पना, मैं उसको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ कि क्या हमारे अंदर भावनाएं जागती है उनके प्रति उस समय। कह सकते हैं ना कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिन्होंने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बिचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र खगोल भूगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय। वाह, ये सारी कविता आपने लिखी है? नहीं, ये मेरी कविता नहीं है, ये मैथिली शरण गुप्त, ये जो कलम आज, ये दिनकर जी की है। और कई मैं अपने जो हैं, अपने कवि हैं, मैं उनकी कविताएं पढ़ती रहती हूँ और उनको गुनगुनाती रहती हूँ, और उससे मुझे एक देशभक्ति का अलग जज्बा मेरे अंदर पनपता है, एक अलग कार्य करने की मुझे शक्ति मिलती है। जहाँ आपने सुना होगा कवि माखनलाल चतुर्वेदी की ये 4 पंक्तियां, जहाँ एक पुष्प कामना करता है कि चाहा नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिन कर प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सर पर चढ़ूं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। जहां एक पुष्प ये कामना कर सकता है, सोचिए, तो हम मनुष्य होकर पीछे क्यों लें? हम देश के लिए कुछ करें। हम सरहद पर नहीं जा सकते, मेरा मानना है, लेकिन हम छोटे छोटे कार्यों द्वारा हमारे देश को हम साफ रखें, हम स्वस्थ रहें। हम स्वस्थ रहेंगे, वो भी हमारे देश के प्रति हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी स्वस्थ बने, हमारा भारत मजबूत बने। से कितने ही इस तरह के छोटे छोटे कार्य करके हम अपने देश के प्रति अपना ऋण चुकाने की एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि देश का ऋण तो कभी चुक ही नहीं सकता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और ये आपकी जो पुस्तक आपने जो लिखी है वो कहाँ अवेलेबल है? ये जैसे पहले तो क्रॉस रोड पे थी, अमेजोन पे भी है ये पुस्तक। हाँ हाँ, अमेजोन पे। Going further to another question, are जी। there any upcoming books of yours apart from this? Is Yeah. there something you are currently working on? What about your poems? Where can we find those? देखिए, मैंने, कल्पना जी है ना, आज तक 14 किताबें लिखी हैं। मैं कभी कोई भी किताब मार्केट में नहीं लाई हूँ। ये परमवीर चक्र पहली पुस्तक थी जिसको मैं मार्केट में लाई, कि मैं चाहती थी कि लोगों तक ये पहुंचे।
अभी मेरी दूसरी किताब जो मैंने पहले हिंदी में लिखी थी भारत भाग्य विधाता, जिसमें हमारे सारे क्रांतिकारियों के बारे में है। मेरी इच्छा है कि मैं उसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कराऊं। इसमें हमारे सारे क्रांतिकारियों के बारे में एक एक पेज में शॉर्ट उनके बारे में, ताकि हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी उनके बारे में जाने कि भाई सुभाष चंद्र बोस कौन थे, भगत सिंह कौन थे, सुखदेव कौन थे, क्योंकि हम जानते ही नहीं है उनके बारे में। तो वो एक मेरा एक कार्य चल रहा है। दूसरा, अभी इन दिनों घर में बैठकर मैं सकारात्मक बहुत लिखती हूँ। मेरी एक कोशिश रहती है कि सकारात्मक विचार फैलाइए। अंधेरा, हम कहते हैं कि अंधेरा है सब जगह, लेकिन अंधेरे की कोई अहमियत नहीं है अगर आप दीपक जला लेते हो, आप प्रकाश करते हो। सूरज के सामने अंधेरा कहीं न कहीं खत्म हो जाता है, और एक दीपक भी होता है तो अंधेरे को लील सकता है। तो बस आप एक दीपक बनने की हम एक छोटी छोटी कोशिश कर सकते हैं। और तो अभी मैंने और बहुत सारी किताबें लिखी। अभी जैसे जनवरी में जब मंजू व्हाट आई एम हुई थी रिलीज, उसी समय मैंने एक आशा करके किताब है, उसको भी मैंने रिलीज की थी, जिसमें सारी सकारात्मक चीजें हैं। ये आशा। अच्छा, हाँ, अमेज़न में अवेलेबल होगी? ये मैंने सब डाली नहीं है अभी तक, कुछ भी कह रही हूँ। मैं अपनी खुशी के लिए लिखती हूँ, हजार कॉपियां बनवाती हूँ, सारे फ्रेंड्स में बांट देती हूँ मैं। और जब फ्रेंड्स बोलते हैं अरे हमें नींद नहीं आई, मैंने माँ पे एक किताब लिखी, मेरी कई सखियां बोलती है कि जब भी माँ की याद आती है तुम्हारी पुस्तक खोल के बैठ जाते हैं, हमारे आंख में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा रिवॉर्ड और मुझे क्या मिल सकता है। तो बस ये कोशिश करती हूँ कि लोगों में खुशियां बांट सकूं। और मेरी किसी भी पुस्तक की वजह से अगर किसी के जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव आता है, तो मुझे लगता है कि ये पुस्तकें लिखकर मैंने अच्छा कार्य किया। इनक्रेडिबल, आपके वाइब्स भी इतने अच्छे मंजू जी। मैं खुद आपकी पर्सनल फैन हूँ और आपसे इतना इंस्पिरेशन लेती हूँ, लेकिन आपने इतनी अच्छी बुक लिखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको मार्केट में लाइए। इवन आई वुड लव टू बाय देम एंड रीड देम एंड टॉक अबाउट इट एज वेल। श्योर। So during the lockdown, as we have seen in the news, the rate of domestic violence have risen tremendously. What is your take on this? How do you suggest a woman to tackle such issues? कल्पना जी, जैसे अपने आसपास के लोगों में हमने ये कम सुना है। हो सकता है कि कहीं ना समझी में, अशिक्षित है, वहां पर ये वायलेंस बढ़ा हुआ है। लेकिन ऐसे में मैं चाहती हूँ कि एक नारी जो होती है ना, वही नारी की मदद कर सकती है। जैसे घर में एक सास होती है, जेठानी है, ननंद है, तो ऐसे वायलेंस के समय में उनको चाहिए कि वो एक महिला का साथ दे, महिला के पीछे खड़ी रहे, अपना बेटा है या पति है, मतलब जो भी है, भाई है, उसको समझाए। तो इस तरह से हम ये वायलेंस कम कर सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप तलाक लेकर घर बैठ जाओ, अपना घर तोड़ दो। हम चाहते हैं कि आपस में आप बातचीत करो। सबसे बड़ा क्या मुद्दा है, आजकल हम लोग बातचीत नहीं करते हैं और एक दूसरे पर बस अपने विचार थोप देते हैं। बस मैंने ये सोचा है, यही होना चाहिए, ये नहीं हो। आपस में हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को समझाएं, अपनी बात उनके सामने प्रस्तुत करें कि नहीं भाई, ये बात ऐसी नहीं, ऐसी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये वायलेंस कम हो सकती है, आपस में आपसी समझदारी के से ही हो सकती है। हम घर बैठे अगर आज मैं उनको कुछ लेक्चर दूं, वो कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ ना कि सामने वाले की सीट पर, हॉट सीट पर जो बैठता है और हॉट सीट के सामने बैठकर जवाब देना बहुत आसान होता है, लेकिन सही मायनों में किस पर क्या गुजर रही है वो मुझे नहीं पता। कल्पना जी, मेरे जैसे मैंने जानती हूँ, मैं एक ऐसी 2 महिलाओं को जानती हूँ जिनके पतिदेव से उनका तलाक हुआ, लेकिन ऐसे समय में उनकी सासुओं ने अपनी बहू का साथ दिया और अपने बेटे को घर से निकाल दिया कि तुम जाओ क्योंकि तुम्हारी गलती है, मेरी बहू की गलती नहीं है, मेरी बहू मेरे साथ घर में रहेगी। देखिए, इससे बड़ा सपोर्ट और क्या हो सकता है। तो सही मायनों में जो हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एम्पावरमेंट खुद को आगे बढ़ाना नहीं है, एम्पावरमेंट है अपने साथ जरूरतमंद को हम आगे बढ़ाएं, जिसको जरूरत हो उसका हम साथ दें, वो सही मायनों में एम्पावरमेंट होता है। बिल्कुल सही कहा है एकदम। मतलब यहाँ बैठ के सलाह देना बहुत ही आसान होता है जिनके ऊपर गुजरती है। और मैंने ऐसे एक क्वेश्चन सवाल काफी लोगों को पूछा, लेकिन आप जैसा पॉजिटिव किसी ने आंसर नहीं दिया कि आप, यूजुअली लोग कहते हैं टेक एक्शन, टॉक टू पुलिस, गो टू रजिस्टर दिस थिंग। आपने कहा कि आप खुद ही डिस्कशन करो, कॉन्वर्जेशन करो घर पे। सो दिस इज अ वेरी, इसमें बताता है आप कितने पॉजिटिव हो और एक आपके रूट्स कितने स्ट्रॉन्ग है। How inspiring is that? So today we all recognize you as ardent philanthropist, but we would like to know what gave birth to this urge to help people and empower them. What led the setup of the Loda Foundation?
सबसे पहले कल्पना जी, आपको पता है कि हम लोग जैन हैं। हाँ, हमें बचपन से सिखाया जाता है, जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे साथ हाथ में अगर 1 रुपया भी देंगे तो क्या बोलते हैं हम लोग, मंदिर के बाहर जो चप्पल वाली बैठी है उसको हमें कुछ देना है, हाँ, गाय का है, गाय वाली है तो गाय को चारा खिलाना है, मंदिर में डालना है। तो हमारी नींव वहीं से पड़ जाती है देने की, एक देना हम वहीं से सीख जाते हैं। और मुझे याद है कि मैं बचपन में जब 5 या 6 साल की होंगी, माँ के साथ मंदिर गई थी। मंदिर से आते हुए एक दुकान पे मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे 5 स्टार बहुत पसंद थी। मैंने कहा मम्मी मुझे 5 स्टार दिलाइए। उन्होंने मुझे 5 स्टार दिलाई। इतने में सामने से एक दीन लड़की आई, उसने अपना हाथ फैलाया। अब मैं तो बच्ची थी, मैं अपनी चॉकलेट छिपाने लगी, मैं नहीं दूंगी। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं बेटा, एक काम करो, इसको आधी चॉकलेट इसको दे दो, आधी तुम खाओ, मैं तुमको कल एक और दिलाऊंगी। और माँ के कहने पर मैंने उसको आधी उस लड़की को दी। और मुझे लगता है कि उस दिन वो बीज पड़ा था कि किसी की भी जरूरतमंद की सहायता करनी। और समय के साथ ये बीज अंकुरित होता गया। और जब समय आया, मेरे पतिदेव वो एमएलए के इलेक्शन के लिए खड़े हुए, और उस समय हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे। और जहाँ हमारे एरिया में बड़ी अट्टालिकाएं हैं, वहीं हमारे एरिया में स्लम भी बहुत है। तो स्लम में जब हम गए, जब हमने वहां का सब देखा कि किस तरह से वो रहते हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, किस तरह से उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और स्लम की एरिया ही क्यों, कहीं बिल्डिंगों में भी रहने वाले लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि बाहर फीस बहुत ज्यादा होती है। तो उस समय हमने एक निश्चय किया और हमने एक क्लासेस शुरू की, मेहंदी, ब्यूटिशियन, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जैसे लड़कों के लिए हमने वेल्डिंग का शुरू किया, इलेक्ट्रिशियन शुरू किया, मोबाइल रिपेयर शुरू किया, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि लोग अपने पैरों पर ये सीखकर अपने पैरों पर खड़े हों। क्योंकि हम भोजन किसी को देते हैं, सुबह देंगे, दोपहर देना है, फिर शाम देना है, फिर दूसरे दिन देना है। लेकिन एक व्यक्ति को जब आप पैरों पर खड़ा करते हो तो वो स्वयं का तो भरण पोषण करता ही है, अपने परिवार का भी करता है। तो सबसे पहले हमने आज से 25 साल पहले इस तरह की क्लासेस शुरू की थी, और उस हजारों लोगों ने इसका लाभ उठाया। फिर हमने कंप्यूटर की क्लासेस चालू की, और मेरा मानना है कि आज तक 1.5 लाख लोगों ने कंप्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ सीखा है। हमारे एरिया के अलावा हमने जहां जहां हमारा काम चलता है, जैसे डोंबिवली है, थाना है, जहां जहां हमारा काम है, हमने वहां सब जगह सेटअप किया। और वहां लोगों को मतलब ये इस तरह से हमारी ये जर्नी शुरू हुई कि लोगों की मदद करना है। उसके बाद में तो लोढ़ा फाउंडेशन में अनगिनत कार्यक्रम जुड़ते गए। जैसे आपने कहा, मोबाइल लाइब्रेरी चालू की, मोबाइल मेडिकल वैन शुरू की, लोगों विधवाओं के लिए हमने शुरू किया, स्वास्थ्य के लिए हमने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए शुरू किया, मीन्स बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए शुरू किया। हमारे अनगिनत काम है, क्योंकि मेरा मानना है कि जितना कुछ हम पाते हैं उतनी ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि समाज को भी हम वापस दें। कोई देखिए, हम हमारे ऊपर खर्चा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, आप कमा रहे, लेकिन वो कोई मायने ही नहीं रखता। आपकी जो असली पूंजी है, जो आपने लोगों के लिए खर्च किया, लोगों के चेहरे पर अगर आप मुस्कुराहट लाने में सफल हुए ना, तो आपका जीवन सफल है। और हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, पूरी दुनिया में सहायता भी नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कोशिश करिए कि आपके आजू बाजू रहने वाले, कहते हैं ना कि कहीं दूर जाकर प्रार्थना करने से या पूजा करके अगरबत्तियां जलाकर पूजा करने से कहीं बेहतर है कि हम अपने आसपास रहने वाले लोगों के दुख दर्द को दूर करने में सहायक बन सके, उनके प्रति मन में एक सद्भावना रखें। एक लेखक ने बहुत बड़ी अच्छी चीज लिखी थी, देखिए उसने क्या लिखा कि मेरी आंखें दे देना उसे जिसने कभी उगते हुए सूरज को नहीं देखा, जिसने किसी बच्चे के चेहरे की प्यारी सी मुस्कुराहट नहीं देखी, जिसने किसी की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देखा। मेरा दिल दे देना उसे जिसके दिल ने उसे दुख के अशेष दिनों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। मेरा रक्त दे देना उसे, उस युवक को जो अभी अभी कार के मलबे से बाहर निकाला गया है, ताकि वो खेलते हुए देख सके अपने पोते और पोतियों को। मेरे हड्डियां, मांसपेशियां, मेरी नस नस सब कुछ ले लेना, और कोई ऐसा उपाय निकालना जिससे कि वह अपंग बच्चा चल सके, और फिर जो कुछ मेरा बाकी बचा है उसको जला देना और उस राख को हवाओं में उड़ा देना ताकि फूल खिल सकें। अगर कुछ दफनाना है, कुछ जलाना है, तो मेरे अहंकार को जलाना, मेरी गलतियों को जलाना, मेरे अभिमान को जलाना, मेरे पूर्वाग्रह को जलाना जो पाले थे मैंने अपनों के प्रति। और तुम सब ये कर लोगे तो मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। अगर तुम में से सब
उस चेहरे को पढ़ लोगे जिसे तुम्हारी जरूरत है, उस चेहरे को तुम मुस्कुराहट दे दोगे जिसे मुस्कुराहट की जरूरत है, तो मैं हमेशा जिंदा रहूंगा तुम्हारे अंदर, हमेशा जिंदा रहूंगा तुम्हारे अंदर। कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दें तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। आइए कोशिश करते हैं, प्रण करते हैं कि हमारी वजह से एक चेहरे पर एक जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो सके, एक चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। वाओ, आपने एक नहीं लाखों की जिंदगी और चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए हो। ये जो सारे वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट की जो आपने बात की, वो सारे सेटअप पूरे आई मीन आपके मलाबार हिल में ही है या पूरे बॉम्बे में है? नहीं, मलाबार हिल में है, भिवंडी में है, और हाँ भिवंडी में हमने पूरा बना के रखा है, ये गुरुकुलम जैसा बना के रखा है। वहाँ हम हमारी बस भेजते हैं और आदिवासी एरिया से हम महिलाओं को, पुरुषों को खुद हमारी बस लाती है और फिर बस छोड़ती है और उनको हम सब सिखाते हैं। तो हाँ, डोंबिवली में भी है। तो इस तरह के अलग अलग क्षेत्र में है जहाँ हमारा सेटअप है, जहाँ हमारा कार्य चल रहा है, क्योंकि संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। तो उस एरिया में हम लोग हम चालू करते हैं। हमने मजदूर महिलाओं के लिए, जो मजदूर काम करते हैं उनकी वाइफों के लिए हमने कोर्स शुरू किए, उनके बच्चों के लिए क्रैश किया, उनके बच्चों को मोबाइल इसके क्रैश के साथ जोड़कर उनको आगे पढ़ाने के लिए हमने किया। इस तरह के छोटे छोटे कार्य हम मतलब चलते ही रहते हैं कि जो भी हम कर सके उस तरह से करना चाहिए हमें। इनक्रेडिबल, मतलब जो लोग नहीं पहुंच सकते आपके पास, आप उनके पास पहुंच चुके हो। ये आप हमारे दिल में हो। So tell us more about the initiative of Lodha Group. Also, given the situation of COVID-19, many people have lost hopes and have been in great distress. How is the Lodha Foundation helping people in Mumbai? Are there any new initiative of these people? Of course, हमने जब ये शुरू हुआ उस समय हमने भी लोगों को एवरी डे की हमने 20,000 पर डे हमने मील बांटे एवरी डे। हमने 4 जगह सेटअप किया था उसका, साउथ मुंबई, थाना, डोंबिवली एंड हमारा लोढ़ा धाम जहाँ है, ताकि आने जाने वाले रास्ते में भी रहते थे, करते थे। और हम लोग हमारी गाड़ियों में पैकेट डाल के कि वो आ नहीं सकते तो हम उस एरिया में जाते सर्टेन, और उनको फिर हम वहां पे बांट के आते थे एवरी डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, हम लोग दोनों टाइम किया। हमने 1.5 महीने तक ये किया। उसके साथ में हमने, जैसे हमारी सोसाइटीज वगैरह, हमारा मलाबार हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारी, लोगों को फ्रूट्स की आवश्यकता होती है, वेजिटेबल्स की आवश्यकता होती है, अनाज चाहिए, तो हम हमारा टेम्पो मंगाकर उनके द्वार तक, उनकी बिल्डिंग तक ले जाते हैं। उनकी बिल्डिंग में आप, हाँ, जो आपको लेना है, खरीदना है वो आप, अभी तो सब मिलना सुलभ हो गया, लेकिन स्टार्टिंग 1.5 मंथ बहुत मुश्किल था। लोग घर से और डरते थे निकलने में भी कि हम कैसे लाएं। हमने वो सब किया। बिल्डिंगों में सैनिटाइज करना है, लोगों के फोन हमारे पास आते थे, हमारा फाउंडेशन जाके सैनिटाइज करके आता है। हमारे फाउंडेशन जैसे उनकी टंकियां साफ करनी है, बारिश के पहले है, वो जाके कार्य करके आते हैं। इस तरह से हमारी कोशिश रहती है। अच्छा, कई लोगों के हमको फोन आते हैं कि हमारा ऐसा हो गया, इस तरह से हो गया, बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, तो हम वो भी कोशिश करते हैं कि किसी न किसी माध्यम से हम उनका सहायता कर सकें। अभी कल मेरे पास जैसे किसी का फोन आया कि मुझे आपका, एक जन का फोन आया, मंजू जी मेरा फ्रिज खराब हो गया है, मैं इतनी परेशान हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, कुछ तो आप कराइए। कि मैं 1 महीने से कोशिश कर रही हूँ, फिर मुझे आपकी याद आई और मैंने आपको फोन किया। मैंने दूसरे दिन ही किसी को भेजा, उसका फ्रिज ठीक हो गया। वो इतनी खुश हो गई कि काश मैंने आपको 1 महीने पहले फोन किया होता, मैं इतनी दिन से तकलीफ देख रही थी। इस तरह से छोटे छोटे फोन, बहुत सारे फोन आते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनसे बहुत अच्छे से एक तो बात करूं। उनकी जो भी तकलीफ है मेरे से दूर होगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं उनसे इतनी अच्छे से बात करूं कि उनकी तकलीफ ऐसे ही दूर हो जाए, उन्हें लगे कि कोई तो हमारा सुनने वाला है। इस तरह से कई फोन आते हैं, क्योंकि उनकी सबकी बातें मैं यहाँ रखना नहीं चाहती हूँ। जैसे कल भी किसी का एक फोन आया था कि मुझे कहीं जाना है, मैं क्या करूं, सीनियर सिटीजन हूं, किसी की डेथ हो गई। मैंने कहा सबसे पहले तो आप अपना संभालिए, आप कहीं भी जाएंगे, लेकिन अगर कोई गाड़ी है, कोई टैक्सी का, अगर आपको कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? पहली शर्त है कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखो। फिर भी आप कहोगे मुझे जाना है, मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं वहां तक पहुंचा दूं।
तो सामने वाला आदमी उसमें ही खुश हो गया कि नहीं आपने बहुत अच्छी राय दी, कम से कम आपने मुझे सुना तो सही। तो मेरा ये कहना है सभी दर्शकों से कि ऐसे समय में आपके पास किसी का फोन आता है, देखिए सुनने वाला बहुत जरूरी है। कल्पना जी, सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत देखी है ना, वो बड़ी दुखद है। एक टैलेंटेड लड़का यूं ही चला गया। अगर काश उसके पास उस समय कोई दोस्त ऐसा होता जो उसके मन की बात सुन लेता, उसके पिता के साथ वो रह लेता। हो सकता है कि जब ये कोविड का चालू हुआ वो जाकर अपने माँ बाप अरे माता जी तो उनकी थी नहीं, पिताजी के साथ रह जाते। यानी आदमी इंसान को क्या चाहिए कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख दे, बस एक कंधे पे हाथ रखने वाला अगर मिल जाता है ना, तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, किसी को ना पैसा देना है, ना धन देना है, ना दौलत, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उसकी बात सुनो और उस बात को सुनकर उसके प्रति जो भी मन में राय है वो दीजिए, और एक छोटी सी कोशिश बहुत कुछ बदल सकती है। बिल्कुल सही कहा, सुनने वाला चाहिए मंजू जी। और मैं आपसे और एक बात कहूंगी भाभी जी, मुझे किसी ने कही थी, आई थिंक आज से 2-3 साल पहले, के सर के बारे में जी, ऐसा एमएलए हमने कभी नहीं देखा है जिनको एक मैसेज कर दो कि हमारा प्लम्बर के वहां पे खराब हो गया है, आप प्लम्बर को भेज दीजिए जी, और ही इज अवेलेबल। यस यस यस, इज 24 आवर्स अवेलेबल एमएलए, मैंने उनका नाम वही दे दिया है। एंड दे विल लाइक यू नो, मतलब ऐसा मैंने कई मंत्री नहीं देखा है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो वी रियली हैव दोस पॉलिटिशियंस हु आर रियली वर्किंग फॉर इट। और मैं पर्सनली भी, मैंने भी खुद ट्राई किया इनसे और कभी मैं निराश होके नहीं गई हूँ। So that is why we all love you, we follow you and you all inspire us so much. But ये बात मुझे आज भी याद है कि जब उसने कहा कि एक मैसेज पे मेरा काम होता है। So ऐसे मैं काफी मंत्रियों को देखती हूँ जो करते भी नहीं, सुनते भी नहीं है। So I think this is something even they have to take inspiration, और मैं खुला इस प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ। मैं आपको पद मिला है, आपको पद मिला है जनता की सेवा के लिए, प्लीज जनता की सेवा करिए। भगवान ने ऐसे चांस मिलते किसको हैं? जब भगवान आपको ये चांस दे रहा है सेवा का तो वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो अक्षय खजाना उसके वहां भी तो लिखा जाता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वही इसलिए कहते हैं कि जब when God gives you the power in your hand, आप उसको यूटिलाइज कर लो राइट तरह के, अदरवाइज भगवान को वो पावर लेना भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Right. Moving forward in life, what are the biggest challenge you have faced? What is the message you would like to give to our young audience? कल्पना जी, मैं एक बात बताती हूँ, जीवन के हर पल में संघर्ष है। आपको मैं बताती हूँ, आप जिस जिस मोड़ से गुजरते हैं उस मोड़ पर संघर्ष आते हैं। मैं कभी सोचती हूँ कि जैसे 18 साल में शादी हुई, एक लड़की जिसको कुछ भी नहीं आता था, खाना बनाना नहीं आता था, दालें क्या होती हैं, रोटी कैसे बनाती हैं, नहीं आती थी। तो उस समय का मेरा वो संघर्ष वो था कि मुझे किस तरह से अपने पति और खुद का पेट भरना है। किस तल्ला दलाल की किताब लेकर, मेरे पास गैस नहीं थी, हम दोनों ने शून्य से शुरू किया था। दोनों के माता पिता बहुत अच्छे थे, लेकिन हम दोनों ने अपना जीवन जीरो से शुरू किया, 2000 रुपए से शुरू किया। तो वहां मैंने सिगड़ी पे खाना बनाया, मैंने स्टोव पे खाना बनाया, वो मेरे लिए उस समय चैलेंज था। 19 साल में पहला बेटा हुआ, 21 में दूसरा बेटा हुआ, फिर उनको बढ़ाने का। एक तरह से मैं एक बेटे को गोद में लेके दूसरे बेटे को स्कूल लेने पैदल जाती थी कि मेरा वो पैसा सेव हो टैक्सी का। जबकि एक लड़की जिसने कभी उठ के ग्लास पानी भी नहीं पिया था कि क्या पानी हो, मतलब माँ लाके देती थी तब जाके मैं उठती थी। तो जीवन के हर मोड़ के संघर्ष होते हैं कि ये संघर्ष बहुत था या ये कम था, मुझे नहीं पता। फिर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फिर एक समय ऐसा आया पति बिजी हैं, बच्चे बिजी हैं, मुझे लगा मैं क्या करूंगी, कहीं डिप्रेशन में चली गई तो अब तक तो मेरा पूरा जीवन उनके इर्द गिर्द था, अब उनकी अपनी दुनिया बन गई। फिर डिप्रेशन में चली, मैंने कहा नहीं, मुझे जीवन में डिप्रेशन में नहीं, अवसाद कुछ नहीं है। मैंने अपनी राह बनानी शुरू की, लिखना पढ़ना, मैं ये सब समाज से जुड़ी, मैंने अलग अलग जहां पर ये संस्थाएं हैं उनसे जुड़ी, वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और जीवन में आज भी संघर्ष है, कह रही हूँ ना, हर मोड़ का संघर्ष है। तो कोई भी ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ये संघर्ष बहुत बड़ा था, हर संघर्ष का अपना मजा है। उस संघर्ष के से निकलकर जो पाने की खुशी होती है वो अलग है। मैं हर बार ये कहती हूँ कि मुझे हेलन केलर का ये वाक्य बहुत हमेशा मुझे आकर्षित करता है कि अगर उल्लंघन के लिए सीमाएं न होती, तोड़ने के लिए बाधाएं न होती, पार करने के लिए रेखाएं न होती, तो जिंदगी में किसी पुरस्कार की तरह मिलने वाले आनंद में
कहीं न कहीं कमी अवश्य रह जाती। आपने कल्पना जी कम संघर्ष नहीं किया है, मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता है। तो हम सबके जीवन में संघर्ष है, लेकिन जरूरत है उस समय कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। मैं बार बार इस चीज को दोहराती हूँ कि आप नकारात्मकता में मत जाइए, वहीं से डिप्रेशन शुरू हो जाता है। डिप्रेशन क्या है? ये मन मस्तिष्क की एक स्थिति है, अवसाद, और कुछ नहीं है। कि हम जब तक अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। तो जीवन में हर एक के संघर्ष में आते हैं, और हम बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं ना, उसे भूलते जाते हैं। नहीं, हर दिन ऐसे जियो कि आज ये आखिरी दिन है। अगर भगवान ने कहा कि आज आपका ये आखिरी दिन है, तो आप किस तरह से उसको जियोगे? आप दुखी होके जियोगे कि सुखी होके जियोगे? हर पल का आनंद उठाओगे? तो हर पल का आनंद उठाइए। जैसे अभी ये 3 महीने हैं, कई लोग बोलते हैं कि भाई कितना, मैंने कहा जो भी भगवान ने दिया है, ये परिवार के साथ आप 40 सालों में 50 सालों में आपने जो जीवन नहीं बिताया, ये जीवन बिताने के लिए दिया है। आप अपने बेटों के साथ बैठ रहे हो, पोते पोतियों के साथ बैठ रहे हो, उनके साथ खेल रहे हो, नृत्य कर रहे हो। मैं जीवन में जो नहीं करने का समय था आपके पास, वो सारी चीजें आप कर रहे हो। तो इससे हाँ, तो बस तो संघर्ष से घबराइए मत, संघर्ष तो चलता रहता है। कि छूकर के पाषाणों को जो भगवान बना लेते हैं, विधि के निष्ठुर अभिशापों को जो वरदान बना लेते हैं, वही वीर होते हैं जो विपत्ति में भी नव उल्लास लिए चलते हैं, और सांस सांस में नव जीवन का नव इतिहास लिए चलते हैं, नव इतिहास लिए चलते हैं। याद रखिए, प्रतिमा वही पत्थर बन सकता है जो छेनी और हथौड़ी की मार को सहन करता है, और जो नहीं करता वो पत्थर बनकर एक कोने में पड़ा रह सकता है। Wow, too good, super. एकदम सही कहा आपने. And what is that one thing you would like to change in the plight of women in rural India? What is the best way to empower them? What can we, as your audience, do to contribute to their empowerment? सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। अच्छा. और शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ किताबी से पढ़ाई करनी है, पाठ्यक्रम कराना है। वो तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है, आप जैसे मैंने कहा ना कि जैसे हम लोगों ने कला कौशल शुरू किया, कि जिस मेहंदी है, ब्यूटिशियन है, इस तरह के कोर्स जहाँ पे वो अपने पांव पे खड़ी हो सकती है। तो हमारे तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इन महिलाओं को शिक्षित करें, क्योंकि एक महिला जब शिक्षित होती है तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। और हमारी जो ऑडियंस है वहां जाकर उनको इस तरह से, हम एक छोटे छोटे गांव भी अगर गोद लेते हैं, उस गांव में आप उनको सिखाइए, पेड़ पौधे लगाएं, और जैसे फलों के लगाइए, वो फलों को बेचकर आप कमाई कर सकती हैं। कहीं एनवायरमेंट की से जुड़ी हुई चीजें हम कर सकते हैं। तो और उनको जो चीजें वो बनाती हैं, उनको बेचने का भी एक प्लेटफॉर्म हमें देना होगा। उनको वो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें वो भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। इस तरह से हम उनकी रूरल की जो महिला, और आज तो मैं सही मायने में मैं कहूँ कि वो महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं। आज ग्राम पंचायत में देखो या कोई भी चीज में देखो, सरपंच महिलाएं बन रही हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वो पीछे हैं, लेकिन वो हमसे आगे हैं, काफी आगे हैं, और वो हमसे बोल्ड भी होती हैं, वो निर्णय भी ले सकती हैं, जुझारू भी होती हैं। तो बस हमें उनकी इसी तरह से मदद करनी है कि हम उनको आगे बढ़ने में कहीं कहीं एक प्लेटफॉर्म दे सकें। बिल्कुल सही कहा, empower each other. Yeah. Tell us something about your recently launched book, All That I Am. ये कल्पना जी, इस किताब में मेरा पूरी जीवन, कह रही है ना, मेरी पूरी जीवन है, मेरा जीवन वृत्तांत है जो मैंने कार्य किए हैं अब तक। मंजू लोढ़ा जी को जानना है तो बाय दिस बुक। यस। और ये भी एक था कि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ मतलब हमारी बातचीत जैसे चली, 6 महीने पहले एक बार उनका फोन आया था, तो मैंने कहा मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मेरे ऊपर कोई कॉफी टेबल बुक बने। मैं उनको 6 महीने से मना कर रही थी कि नहीं। हाँ, मैंने कहा नहीं मेरे ऊपर नहीं बनानी है, लेकिन उन्होंने भी मुझे निरंतर वो फोन करते रहे। फिर मेरे पति ने, मेरे बच्चों ने समझाया, मम्मी जीवन में ऐसा अवसर किसको मिलता है, आप करिए, उनके साथ आप बातचीत करिए और ये किताब होने दीजिए आप। और वो किताब बन गई। तो Wonderful. I mean, I'm sure all of us will get more inspired by that. आपकी जो इतनी पॉजिटिव वाइब्स है और आपकी जो सोच है, इतनी एम्पावरमेंट, हर जगह आप हर की चीज में एक लोगों को और समाज को और हमारे फोर्सेस को भी एम्पावर करने में ही लगी है जिंदगी आपने। आई मीन यू आर डेफिनेटली अ डिवाइन चाइल्ड एंड गॉड हैव सेंट यू टू हील सो मेनी ऑफ अस एंड यू आर डूइंग योर ड्यूटी सो वेल। मुझे लगता है भगवान का आशीर्वाद, ये जो मुझे है ना, कुछ भी नहीं आता था, मैं आपको सच्ची बताऊं,
2,000 रुपए से आपने स्टार्ट किया, चूल्हा पे आपने स्टार्ट करके आप यहाँ तक आई है, इससे बड़ा और क्या इंस्पिरेशन हो सकता है? मतलब मैंने जीवन में सब कुछ देखा है जीवन में, तो इसीलिए मेरी सब फ्रेंड्स आज भी कहते हैं कि मंजू एकदम मतलब ग्राउंड टू अर्थ है। मैंने कहा होना भी चाहिए, होना भी चाहिए हमें जीवन में। हमें थोड़ी सी हवा भर गई गुब्बारे में, वो उड़ गया, और आप उड़ते रहो, मतलब नहीं, वो गुब्बारे में हवा जब निकलेगी आप नीचे धरती पे गिरने वाले हो, तो माइट एज वेल कि आप धरती से जुड़े ही रहो, ताकि गिरने का डर नहीं रहे कभी भी। मेरा ये मानना है कि अभिमान तो राजा रावण का नहीं टीका माँ समझाया करती थी। तो हम और आप क्या है, हमने सबने पढ़ाया भी है कि रावण कितना विद्याधर था, सशक्त विद्याधर था, हर बात में राम से ताकतवर थे, लेकिन क्योंकि उनके अभिमान के कारण, उनके अहंकार के कारण उन्हें राम से हारना पड़ा। अब तो हमें भी अपने अंदर के रावण को मारना है, उस राम को जिंदा रखना है। हम सबके अंदर राम और रावण दोनों हैं, बस उस राम को जिंदा रखना है हमें और आगे बढ़ना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आप। यू आर इंडीड वेरी डाउन टू अर्थ। इट वाज जस्ट अ मैसेज, इट टुक मी टू गेट यू हियर। सो सो प्लीज रीड फ्यू लाइंस फ्रॉम योर फेवरेट पोएम। बहुत सारी मेरी किताबें हैं, मैंने जैसे कि सैनिकों के लिए भी बहुत सारी लिखा, जैसे कि एक पुस्तक मैंने पूरी लिखी, घर कब आओगे, जिसमें मैंने सैनिक पत्नी के भावों को भी लिखा कि जब वो एक पति जाता है तब वो क्या सोचती हैं। और बहुत सारी, जैसे इन दिनों मैंने लिखा जैसे सकारात्मकता है। मैं कहीं भी बैठती हूँ ना, जैसे अभी चौपाटी किनारे बैठी हूँ, वहां बैठकर मैंने एक कविता लिख ली कि ऐसे कैसे लिखा कि चौपाटी किनारे बैठी हूँ, दूर से आती लहरों को देख रही हूँ, जीवन को सार्थक करो, जीवन को सार्थक करो, कानों में आवाज गूंज रही है, जीवन कैसे सार्थक करो, मन ही मन सोच रही हूँ, आती जाती लहरें अटखेलियां कर रही हैं, पांवों को गुदगुदा रही है, एक लहर आती है, दूसरी उसे अपने आगोश में खींच लेती है, लेकिन उनका आना निरंतर जारी है, चट्टानों से टकराना, बिखरना और फिर जुड़ना, पल पल अपने अस्तित्व को कायम रखने की कोशिश करना। देखिए, ये लहर से मैंने सीखा। सामने डूबता हुआ सूरज अपनी पूर्ण लालिमा के साथ अपने शांत स्वरूप की खूबसूरती को बिखेर रहा था, कह रहा था मुझसे, जा रहा हूं, सिर्फ रात भर के लिए अलविदा हूं, कल सुबह फिर आऊंगा अपनी कांतिवान किरणों के साथ और इस दुनिया को चकाचौंध कर दूंगा। कोई भी मेरे तेज के आगे, कोई भी मुझसे आंख नहीं मिला सकेगा। ये सीखा मैंने सूरज से। पास ही बैठा एक छोटा सा माटी का दिया मुस्कुराकर मुझसे कह रहा था, सूरज की अनुपस्थिति में उसका काम मैं करूंगा, पहाड़ों पर चढ़ते उतरते राहगीरों का मार्ग प्रशस्त करूंगा, और जहां बिजली नहीं है वहां पल पल अपने अस्तित्व को गलाकर अंधियारी रात का सूरज बनकर चमकूंगा। मैं चारों तरफ देखती हूँ, प्रकृति का कण कण मुझसे कुछ कह रहा है, प्रतिकूलता को अनुकूल बनाओ, प्रतिकूलता को अनुकूल बनाओ। और अचानक एक घंटी मेरे मस्तिष्क में गूंजती है और मैं अपने आप से सवाल करती हूँ कि ईश्वर ने हम मनुष्य को एक विशेष तुलिका से बनाया है, फिर हम मनुष्य छोटी छोटी बाधाओं से क्यों घबरा जाते हैं, अपने जीवन को क्यों मझधार में ही खत्म कर देते हैं। नहीं, बस अब और नहीं, ए मनुष्य उठ, सामना कर, हर कठिनाई का, हर धारा का मुकाबला कर और विजयी बन, विजयी बन। एक छोटी सी मुस्कुराहट मेरे होठों पर फिर जाती है और दिल एक नन्हा सा तराना गुनगुना उठता है, कर सारी मायूसियों का तर्पण, जीवन जीने की एक नया संबल लेकर हिरनी की चाल से मैं अपने घर की तरफ चल पड़ती हूँ, मैं अपने घर की तरफ चल पड़ती हूँ। ये आपने लिखा बैठे बैठे। हाँ, तो इस तरह से मैं कविताएं, मतलब मुझे हमेशा रहता है कि अच्छी कविताएं लिखो जिसमें कुछ प्रेरणा मिले। और ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आप इतनी खूबसूरत सी एफर्टलेसली आप कविता लिखती हो और आप बोल भी लेती हो। अभी मैंने जैसे है ना, मैंने आईने पर लिखा, एक दिन मैंने कविता लिखी कि मेरे आईने से मैं बातें कर रही हूँ। हाँ, कि भाई मैं आईने से धूल हटा रही थी, अतीत की वादियों में झांक रही थी, चेहरा तो वही है, मासूमियत भी वही है, पर उम्र तो लकीरों से झांक रही है, लाख मेकअप की परतों में उसे छिपाना चाहूं फिर भी वो तो झलक रही है, बालों में चांदी चमक रही है, आंखों पर ऐनक चढ़ गई है। तब मैंने आईने से कहा कि तुम बाहरी रंग रूप तो खूब सही सही दिखाते हो, कभी अंतर्मन की वस्तु स्थिति से भी तो परिचय करा दो कि वहां कितना मैल छोड़ा है, तो वहां भी थोड़ा सा रंग रोगन कर दें, वहां भी थोड़ी सफाई कर दें और अपनी सही वस्तु स्थिति से एक छोटा सा परिचय कर दें, क्योंकि असली सुंदरता तो वहीं से झलकेगी। ये बाहरी रंग रूप तो हमको क्षणिक लुभाएगा, लेकिन आत्मा की जो सुंदरता है ना, वो हमेशा कायम रहेगी और उसकी महक हमेशा महकेगी।
वहां किसी परफ्यूम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए हमेशा अगर युवा रहना है तो बाहरी रंग रूप के साथ आंतरिक सौंदर्य को जगमगाना होगा, तभी तो हमारे व्यक्तित्व में गरिमा झलकेगी। और अच्छी सीरत और सुंदर सीरत सूरत हो, फिर तो उस व्यक्तित्व का क्या कहना, बलियारी बलियारी बलियारी। इस तरह से मैं बातें करती रहती हूँ। आपकी कविता के ऊपर आपको जरूर बुक बनानी चाहिए भाभी जी। इतनी सुंदर कविता, हर कविता में इंस्पिरेशन है, हर कविता में कुछ सीखने को है, और हर कविता में हम लोग एक्चुअली लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसा कविता आप जब सुनते हैं, या आपने जैसे वो कही थी माँ के ऊपर बुक, वो जो मेरे अभी भी मन में चल रहा है, वो मैं जरूर मे बी आई कैन टेक इट फ्रॉम यू, और अगर आप श्योर श्योर। होगी तो वो भी लेना चाहूंगी, प्योर स्टार्टेड इन अमेज़न। बट दिस इज सो अमेजिंग, आई मीन आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ तक आ गई है, और आपने इतने में भी इतनी ह्यूमिलिटी है आप में। मैंने जीवन में क्या किया कि जो एबीसीडी है ना, मैं बोलती हूँ हमारे जीवन का पूरा फलसफा एबीसीडी में छिपा हुआ है। कैसे? ए मीन्स एक्सेप्ट योर सेल्फ वॉट एवर यू आर। हाँ, दूसरों के साथ प्रतियोगिता मत करो कि सामने वाला क्या है और मैं क्या हूँ, नहीं, जो आप हो। मैं बचपन में कल्पना जी बहुत मोटी थी, आपको मैं बताती हूँ। सब लोग मुझे बहुत चिढ़ाया करते थे, टुन 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 कर करके चिढ़ाया करते थे, लेकिन मैं कभी भी बुराई नहीं मानती थी। मैं उनको क्या कहती थी, अपने माँ बाप के लिए मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत बिटिया हूँ, और अब मैं बचपन में हूँ, मुझे अपना बचपन जीना है, और मुझे अभी क्या पढ़ना है लिखना है, मैं इस दौड़ में शामिल नहीं होना है। कोई मुझे मोटा कह रहा है कि पतला कह रहा है, जिस दिन चाहूंगी उस दिन मैं पतली भी हो जाऊंगी। और आप मानेंगे नहीं, जिस दिन मैंने चाहा उस दिन मैं करीना कपूर जैसी 0 साइज भी बन गई थी। अच्छा। हाँ, फिर मैं मोटी हो गई। देखिए जीवन में तो क्या है, काया का क्या है, मोटा होते रहते हैं, पतले होते रहते हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि आप अपने सिद्धांतों को मत बदलो, सच्चाई की राह मत छोड़ो। आज मैं अपने पोते पोतियों को यही बोलती हूँ, आपको स्कूल में कोई भी कुछ बोले, उसको कुछ भी अपने दिमाग में मत लगाओ, आप जो हो वही हो, आप अपने अस्तित्व पर कायम रहो, किसी से हमारी कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये मैं सभी सुनने वाले बच्चे भी अगर सुन रहे हैं तो मैं इनसे यही कहना चाहती हूँ। कई बच्चों को रहता है, अरे मैं काली हूँ, मैं गोरी नहीं हूं, मैं नाटी हूं। अरे ये तो बाहरी रंग रूप है, आप अपनी जो भी है सीरत है उसको जगमगाओ। तो जो कहते हैं ना कि आप कामयाबी के पीछे मत भागो, कामयाब हो, कामयाबी अपने पीछे, आपके पीछे पीछे खुद आ जाएगी। ट्रू। मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ कि तुम अपना एक व्यक्तित्व गढ़ो। हमारे जीवन में देखिए हर मोड़ में हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं, भाग लो या भाग लो, पार्टिसिपेंट और रन अवे। आपने रन अवे किया तो आप कुछ नहीं पाओगे। इफ यू पार्टिसिपेंट आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इसलिए अपने व्यक्तित्व को वैसा ही गढ़ो, वैसा ही करो, और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। हाँ, वंडरफुल। एंड आई थिंक आजकल बच्चों को ना मोर देन दिस ऑल लेक्चर्स मोटिवेशन की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो ज्यादा कम मिलती है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। So now let's move forward to a quick rapid fire. जी। We all have a person who inspires us. So who is that one person who inspires you? मैं देखिए 3 पर्सन का नाम लेती हूँ। मेरी माँ, जिससे मैंने सहनशीलता सीखी, मेरे पिताजी, जिससे मैंने समता सीखी, और मेरे ससुर जी, उनसे मैंने जुझारूपन सीखा कि हर परिस्थिति का सामना कैसे करते हैं। ये तीनों मेरे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इन तीनों से मैंने कुछ न कुछ सीखा है। हाँ। And what's your fondest memory from your childhood? मैं आपको एक कविता सुनाऊं बचपन की, अगर समय है तो। Yes, बहुत समय है। It's all yours. मैं पूरी कविता आपको सुना देती हूँ कि बचपन तो बचपन होता है, कि वो माँ बाप की आंखों के हम तारे, वो भाई बहन का निश्चल प्यार, वो रूठना वो मनाना, वो छोटे छोटे घरौंदे बनाना, वो नन्नों पर घोंस जमाना, और अगले ही पल एक हो जाना, वो एक ही थाली में मिल बांट कर खाना, न तेरा न मेरा सब कुछ अपना। गर्मियों की वो छुट्टियां, वो गांव जाना, वो नानी का घर, वो बड़ा सा आंगन, वो बरगद की छांव, वो निम्बोली का झाड़, वो गली गली घूमना, गुली डंडा खेलना, प्यास लगने पर बर्फ की आइसक्रीम खाना, सांझ ढले भोजन, लालटेन की रोशनी, मंदिरों की घंटियां, इकट्ठे होना, पूरा कुनबा एक साथ गांव जाता था, इकट्ठे होना, हंसना हंसाना, शोर मचाना, डांट खाना, आंखों में आंसू लाना और फिर हुल्लड़ मचाना। वो पानी से ठंडा होता हुआ आंगन, वह कतार से लगते हुए बिस्तर, वह नानी को घेरना, वो राजा रानी की कहानियां सुनना, वो परियों से मिलना, कितना अपना आत्मिक सुख था। गर्मियों की वे लंबी रातें कितनी छोटी लगती थी। पर कल्पना जी अब न नानी है,
न राजा रानी की कहानी है। आंगन तो वही है, पर न वो शोर है न वो हुल्लड़ है। अब गर्मियों में पहाड़ी स्थल, सिमटते परिवार, एयर कंडीशन कमरे, बरगद का वो बुढ़ा पेड़ अपनी सूखी टहनियों को समेटे हमें हवा देने अब भी हमारा इंतजार कर रहा है, अब भी हमारा इंतजार। Wow, 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 wow. And if you could change one thing about our police department, what would it be? जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं यहाँ बैठकर जवाब देना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं उन सबको नमन करती हूँ। आज भी इस परिस्थिति में देखिए कि वो किस तरह से हमारी सेवा कर रहे हैं। इसलिए मैं उनके लिए कोई राय नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि हमें न्याय चौपाल पर मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, अगर आपके पास आता है तो वो सही में विक्टिम है तो प्लीज उनकी मदद करिए और तुरंत करिए। ये मैं कहना चाहती हूँ। हाँ। Wonderful. And what is your idea of an ideal weekend? एनी हिल स्टेशन जहां मैं बस नेचर में खो जाऊं। आई लव टू, मतलब मेरे को नेचर इतना पसंद है, प्रकृति का कण कण मुझे लुभाता है। तो बस मैं उसको देखती रहूं, चाय पीऊं और कविताएं लिखती रहूं। And और आप हमको सुनाते रहिए और हम यहाँ सुनते रहेंगे। वंडरफुल। और इंस्पिरेशन भी लेते रहेंगे। And your biggest weakness is? मैं बताती हूँ कि मुझे ना जैसे दूध का उफान आता है ना, वैसे क्रोध आता है। कब आता है? जब कोई झूठ बोलता है या मेरा घर अस्त व्यस्त रहता है। अभी तो मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया है, लेकिन पहले मुझे एकदम तुरंत होता था। लेकिन फिर मुझे तुरंत है ना वो गिल्टी महसूस, अरे मैंने क्यों डांटा उसको, मैंने क्यों किया उसको, बेचारे को समझ होती तो वो क्यों करता। लेकिन एक बार मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है। उस समय अगर कोई मुझे सामने, मैं बोले झूठ मत बोलो, आपने काम नहीं किया चलेगा, लेकिन प्लीज झूठ मत बोलो। और घर में ऐसा है कि सब चीजें ठिकाने होनी चाहिए। अस्त व्यस्त घर पसंद नहीं आता है, ये मेरी कमजोरी है। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। लेकिन उस पर अभी काबू कर रही हूँ मैं। हाँ। And one Indian food item that you can't say no to? हमारा राजस्थानी फूड, जैसे मेरे पियर के साइड में भीनमाल में हम जाड़ी रोटी बनाते हैं। जाड़ी रोटी एंड दाल, और दाल बाटी एंड गट्टे की सब्जी, वो मैं हमेशा खा सकती हूँ। Wow, same, my favorite too. और जैसे लोगों को पता चलता है तुम मारवाड़ी जैन हो, तो वो लोग गट्टे की सब्जी और हमें रिलेट करते हैं वैसी से जाड़ी रोटी, दाल ढोकली। हाँ, ये सब चीजें। हाँ, कल मिकी मेहता से भी बात हो रही थी, तो लाइक दाल बाटी और चूरमा पहले कल्पना भेज रहा। बिल्कुल। Okay, what do you think has been the best Prime Minister of India till today? Who do you think has been the best president? मैं सोचती हूँ आज में हमारे जो मोदी जी हैं, क्योंकि ही इज वेरी बोल्ड, और उन्होंने हमारे देश के लिए जितने अभी अभी अच्छे काम किए हैं जो हम 70 सालों में नहीं कर सके थे। तो मैं उनको मानती हूँ, और उनके अंदर एक अलग सा जुझारूपन है। जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से सबको, मतलब मुझे उनका व्यक्तित्व मुझे बहुत हमेशा, मतलब बहुत कहती हूँ ना, मैं उनकी कायल हूँ। हाँ हाँ। या और जैसे अटल जी भी थे, कवि हृदय थे। हाँ, वो भी कविताएं लिखते थे। उन्होंने भी उस समय काफी अच्छे अच्छे जो किए थे कार्य। लेकिन मोदी जी की बात ही एक अलग है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। यस यस यस। हाँ, वेरी ट्रू। एंड एन एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव और यू वुड वांट टू पास ऑन, कोई ऐसी एडवाइस जब वो आप? मेरे ससुर जी हमेशा कहा करते थे 3 चीजें, ड्रेस वेल, एड्रेस वेल एंड डैश वेल। यस, ये ड्रेस वेल, पहले तो आप अपने आप को अच्छे से तैयार रखिए। देखिए उसमें आप बहुत फर्क पड़ता है। जब आप किसी अच्छे से तैयार होकर किसी से मिलते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत हाई होता है। देन एड्रेस वेल, आप किसी से बातचीत करते हो, बहुत अच्छे से बातचीत, आपका तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड डैश वेल, आप जो बोलते हो वो चीज पंच की होनी चाहिए। यस, तो ड्रेस वेल, एड्रेस वेल एंड डैश वेल। आप अपने ससुर जी से काफी इंस्पिरेशन ली है? बिल्कुल, मैं वो उनको बहुत खुशी होती थी कि मेरी कवियत्री बहू है ये। अच्छा? और मेरे वो सबसे मिलाते थे, क्योंकि उनको कविताओं का इतना शौक था। और हम 3 बहुओं में से मैंने ही उनका, जो एक बोलते हैं ना गद्दी, उनकी मैं ही बैठ गई उनकी गद्दी पे। तो उन्हें बहुत खुशी होती थी कि और कोई कुछ नहीं कर रहा है, जबकि हमारे तीनों देरानियों में मैं सबसे कम पढ़ी हूँ। हाँ,
हाँ, मैं तीनों में कम पढ़ी हूँ। मैं फर्स्ट ईयर पास हुई और मेरी शादी हो गई थी। मेरी एक देरानी तो एमए लिटरेचर में है और पीएचडी कर रही थी, और एक देरानी बीए पास है, लेकिन मैं ही नहीं पढ़ी थी। लेकिन वो कहती हूँ ना बस मुझे ये शौक थे किताबें पढ़ने का, मुझे हमेशा से शौक बहुत रहा। तो इन किताबों ने मुझे एक नया जीवन दिया, और जिस तरह से मेरे ससुर जी कविताएं सुनाते थे, मैं भी धीरे धीरे वो कविताएं याद करने लग गई, वो सुनाने लगी। देशभक्ति की बहुत सारी कविताएं मैंने उनसे सीखी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने मुझे कई जगह, जैसे अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक पार्टी रखी, तो मुझे एक दिन पहले फोन किया, तो अभी की अभी दिल्ली आ, पूरा प्रोग्राम तू करेगी हैंडल। वाओ। और पूरी डिग्निटरीज, अटल जी प्रधानमंत्री, आप सोचिए मेरे लिए मतलब क्या मौका था। फिर यहाँ पे बॉम्बे में गवर्नर हाउस में जब वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के अध्यक्ष थे, विलास राव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके सामने मुझे अचानक एक दिन पहले बोलते हैं बस तेरे को ये काम करना है, हैंडल करना है। तो बहुत उन्होंने मुझे हमेशा मौके दिए आगे बढ़ने को, मुझे प्रोत्साहित किया। तो मेरे दिल में उनके लिए बहुत एक होता है ना कि एक बहू के प्रति जिस तरह से एक ससुर ने एक पिता का रोल निभाया, तो वो हाँ, मुझे बहुत उन्होंने आगे बढ़ने में, मेरे पिताजी ने तो किया ही, लेकिन एक ससुर जी भी जब एक बहू को मौका देते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, और वो दिल में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। Absolutely, और वेरी फॉर्चुनेट टू हैव समवन। आप शादी करके जब जाते हो अपने, वहां पे कोई ऐसे इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और अपने सपनों को पंख देता है, तो एक बात ही कुछ अलग हो जाती है। क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कल्पना जी मैं कभी बोलूंगी भी। मैं स्कूल कॉलेज में कभी मंच पे नहीं गई, मुझे कुछ आता भी नहीं था। मैं कह रही ना वेरी पर आप एक डिफरेंट लेवल का मोटिवेशन कैसे कर लेते हो? मतलब एकदम दिल को छूता है, ऐसे लग रहा है कि मैं शो ही नहीं कर रही हूँ, आप मुझसे बातें कर रहे हो, मैं आपसे कुछ सीख रही हूँ, और यहाँ से सीखा भी और यहाँ से बहुत कुछ लेके भी जाने वाली हूँ। बस हम लोग जीवन में यही होना चाहिए, मैं कुछ आपसे सीखूं, आप मुझसे कुछ सीखो, तो जीवन की राह बहुत आसान हो जाती है। मैं एक जोक करती हूँ कि जिंदगी की राह कठिन सही तो कठिन सही, थोड़ा तुम चलो थोड़ा मैं चलो, आगे जाके रिक्शा कर लेंगे। Wonderful. Wonderful. As a world peace ambassador, what message of peace would you want to give to our audience? बिल्कुल मेरी कल्पना जी रहती है, मेरे दिल में रहता है, आज सफेद कबूतरों की बात कोई नहीं करता है। मेरा मन मानता है कि सफेद कबूतरों के परों से पूरा आसमान भर जाए, ताकि हम एक युद्धविहीन संसार में जी सकें। हमारी उम्र कितनी है सब लोगों की, हम अधिक से अधिक कितनी, हम लोग 100 साल भी समझ लो, हम ज्यादा से ज्यादा 60 साल 80 साल, और इस 100 साल के जीवन के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं। क्यों? क्या हमारे साथ आने वाला है? सिकंदर भी जब गया तो उसने दोनों हाथ बाहर रखवाए थे और कहा था कि कफन के जेब नहीं होती है, दुनिया को ये बता देना। तो जितना प्रेम बांट सके दुनिया में प्रेम बांटना चाहिए, शांति होनी चाहिए। देखिए हमारे जो सैनिक बेवजह शहीद हो जाते हैं उनका परिवार है, और सैनिक कहीं का भी मरे, इधर का मरे कि उधर का मरे, सैनिक तो सैनिक होता है, उसका परिवार होता है। तो मेरी हमेशा ये रहता है, ये कामना है कि हम एक ऐसे संसार में रहें जहाँ कोई युद्ध ना हो, कोई आतंकवाद ना हो। Such a noble thought. Thank you so much. And a message for social tables. क्या मैसेज दूं बताइए मैं आपको। आप खूब अपने आप में, किसी को मैं कोई मैसेज नहीं दे सकती हूँ, बस हम ये मैसेज दें कि आप जिस तरह से सबको आगे बढ़ा रही हैं, जिस तरह से इन दिनों आप सबके इंटरव्यूज ले रहे हैं, आप एक एक को प्लेटफॉर्म दे रही हैं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। जैसे मैंने कहा ना, ये सही मानों में एम्पावरमेंट है कि आप लोगों की कला को बाहर ला रहे हो, उसकी प्रतिभा को बाहर ला रहे हो। बस यही है कि हम सब मिलकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे महिलाओं को आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, आज भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, उसके अलावा भी जरूरत है। और इस तरह के प्लेटफॉर्म जो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से मैं आपको साधुवाद देती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ कि आप इसी तरह से कार्य करते जाएं। जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने एक है ना विशेषण होता है लड़की, जैसे बेटियां धन की पेटियां, बहना परिवार का गहना, भाभियां घर की चाबियां, माता जिसके गीत हर कोई गाता, बुआ जो हरदम देती दुआ, ताई जिसने घर भर में सुगंध फैलाई, चाची जिसकी हर बात सांची, पत्नी हर कदम की संगीनी, मामियां जादू की छप्पियां, और मासी माँ के जैसी, माँ के जैसी।
तो बहुत सारे विशेषण हैं और महिलाएं ज्यादा पावरफुल होती हैं। मेरा ये मानना है कि पुरुष यूं ताकतवर है लेकिन मन से बहुत कमजोर होता है। हम जो महिलाएं होती हैं जो उनके अहम को पालती हैं, उनके अहम को पोसती हैं, तभी वो दुनिया से जाकर लड़ सकता है। अगर हम भी घर में, मैं सब महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि अपने पति की सही मायनों में हम सफर बने। हम दिन भर हम उनसे चिक चिक करें या घर आके ही हम उनके सामने शिकायतों का पुलिंदा लेकर बैठे मत करिए, क्योंकि बाहर उन्हें हर जगह कई जगह अपना सर नीचे झुकाना पड़ता है। एक परिवार, एक घर ऐसा होना चाहिए जहां वो सर उठाकर बोल सके, सर उठाकर बात कर सके, और आप भी अपनी बात मनवा सकते हो। मैं मेरी फ्रेंडों को कहती हूँ, जब पतिदेव गुस्सा करे उस समय कुछ मत बोलो, थोड़ी देर बाद अपने आप सॉरी बोलेंगे, उस समय 4 सुना देना 2 की जगह। Wonderful way. उस समय कुछ नहीं कहना है, तो बस पति पत्नी मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट कर कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कि भटका हुआ जहीन था, बिखरे हुए जज्बात, सोचा भी न था कि बन सकेगी कोई बात। हम जो कुछ बने हैं एक दूजे से, हम कुछ भी न होते गर न होता एक दूजे का साथ, गर न होता एक दूजे का। Wonderful, wonderful. I don't even want to, conclude this session, but yes, before we conclude the session, what word of wisdom or advice you would like to give to our audience? हाँ, मैंने सब दे दिया है, ज्यादा एडवाइस नहीं चाहिए। हम बस एक दूसरे का हाथ बढ़, बस जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं जैसे होता है ना कि एक भगवान बुद्ध थे, एक बार अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। जब पहाड़ आता है तो शिष्य पूछता है कि इस पहाड़ से ताकतवर क्या है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि लोहा जो पहाड़ को काट सकता है। लोहे से ज्यादा आग होती है जो लोहे को जला सकती है। आग से ज्यादा पानी जो आग को बुझा सकती है। पानी से ज्यादा हवा जो पानी के प्रवाह को बदल देती है। लेकिन हवा से ज्यादा मनुष्य की संकल्प शक्ति जो हवाओं को भी अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देती हैं। तो हमें वही बनना है कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको ये वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू भूल मत, तू बड़ा महान है रे, तू बड़ा महान है रे। और जब भी आप डिप्रेशन में हो, अच्छे लोगों की जीवन चरित्र को आप पढ़ो, उससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आप अंबानी को देख लीजिए, एडिसन को देख लीजिए, उन्होंने अपने जीवन में पहले कितनी कठिनाइयां आई लेकिन वो आज कहाँ पहुंचे। इब्राहिम लिंकन को देख लीजिए जो 21 से 52 साल तक असफल होते रहे, लेकिन उन्होंने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा और 52 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो बस चलते रहिए। सफलता निरंतर चलने का नाम है, एक जगह रुकने का नाम नहीं है। आपको पूरा एक युद्ध जीतना है, छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं जीतनी है। उस युद्ध को जीतने की तैयारी पहले होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम ये कर लेंगे, लेकिन कोई भी कार्य शुरू करने के पहले उसके ऊपर पूरा कार्य करिए कि उस कार्य को मुझे किस तरह से करना है, और इतिहास से पढ़े मत, इतिहास गढ़ने की कोशिश करें। Wow, wonderful. And with so many inspiring names what you have given, you also are one of a living legend and living inspiration for all of us. Thank you so much. Let me take an opportunity to give you all a vote of thanks. Good evening all once again. I would like to thank Mr. and Mrs. Laura for joining us today. I would also like to thank all our dear audience for all the love and support. On this note, we end our webinar. Stay home, stay safe. Thank you so much. Thank you, Bhabhi ji. Thank you, Kalpana ji. Thank you very much. Take care. Take care.